सिंह जी, आदरणीय चिदम्बरम साहब, आदरणीय श्री एंटनी जी, श्री केसी वेणुगोपाल जी और राजीव गौड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक है। दोस्तों, आज आप सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किए जा रहे 2019 के चुनाव के मैनिफेस्टो के साक्षी बन जाएंगे, जो एक उज्जवल भारत के भविष्य की बुनियाद रखेगी, जो एक विकसित भारत के भविष्य की बुनियाद होगी और जो भारत को दुनिया की सबसे अगली पंक्ति में ले जाकर खड़ा कर देगी। हमारा घोषणा पत्र कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके मार्गदर्शन से पी चिदम्बरम जी, राजीव गौड़ा जी और अनेकों हजारों लाखों कांग्रेस जनों और आम जनमानस की सहमति और उनके विचारों से बनाया गया है। हमें विश्वास है कांग्रेस के वादे वचनों की तरह होते हैं और आज कांग्रेस का यह घोषणा पत्र एक नए इतिहास का, एक नए भारत का, एक उज्जवल भारत का, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करेगा। मैं बगैर किसी विलंब के श्री राजीव गौड़ा जी से अनुरोध करूंगा, जिन्होंने कन्वीनर के तौर पर घोषणा पत्र के गठन में एक रचनात्मक भूमिका निभाई है, कि वो इस घोषणा पत्र को बनाने की प्रक्रिया और लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से जो समर्थन लिया है, उसके बारे में आपसे व्याख्या और चर्चा करेंगे। राजीव जी। Respected Congress President Shri Rahul Gandhi ji, respected UPA Chairperson Srimati Sonia Gandhi ji, respected former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji, Antony ji, Chidambaram ji, Venugopal ji, Randeep Surjewala ji, senior leaders of the Congress Party, members of the media, and everyone watching this manifesto launch from within India and elsewhere. It's a pleasure to welcome all of you to the historic launch of the Congress Party's manifesto for the 2019 election. I'm here to share with you some background on the process that we followed to arrive at craft this manifesto. In October 2018, Congress President constituted a manifesto committee with Sri Chidambaram as the chairman and with me as the convener. There were 20 of us, became 22 shortly, and he gave us a very simple mission statement. He told us that he knew that if we sat in a room for a few days and brainstormed, we would be able to come up with a very good manifesto. But he said he wanted something different this time, something which would be a breakthrough in the history of the Congress Party. He wanted us to go out and listen to the voices of the people of India and to reflect those voices in the contents of the manifesto. And that's exactly what we did. We constituted 20 different subcommittees across a range of topics and fanned out across the length and breadth of India and reached out to people through both public consultations as well as through closed-door expert consultations. Together, we managed to our outreach covered 24 states, 3 union territories, and more than 60 locations. We also organized one manifesto consultation in Dubai to reach out to the NRI community, and NRIs from 12 different countries participated and shared their views and concerns. We also opened up the manifesto process online. We had a website, we had a WhatsApp number, we had an email ID, and we also responded to change.org petitions. Over 160,000 inputs came in online. Throughout, at every consultation, there was energy and excitement amongst the people who participated. They were thrilled that the Congress Party was reaching out and listening to them, and that their voices would be reflected in the party's agenda going forward. And that's exactly what we did.
a total of 121 public consultations, including the one in Dubai, 53 closed-door expert consultations, for a total of 174 consultations. And ultimately, we took all these inputs, we sat with them and worked with them for many days, and together as a committee, we arrived at the manifesto which our Congress President is going to launch shortly. Sir, I am happy to mention to you that we took our mission very seriously and we have delivered. Your vision that the manifesto should reflect the voices of the people is exactly what has transpired. The manifesto reflects the voices, the aspirations, the concerns, the suggestions, the ideas, the hopes of the people of India. We look forward to taking this manifesto to the people and to using this as a blueprint for governance in the months ahead. Thank you very much. Jai Hind. शुक्रिया राजीव जी। आज इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित महासचिवगण, कांग्रेस कार्य समिति के सम्मानित सदस्यगण, मुख्यमंत्रीगण, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, विधायक दल के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी जो आज इस ऐतिहासिक समय पर अपना साथ जोड़ने, हाथ जोड़ने आए हैं जनता की इस आवाज में, हम उन सब का भी स्वागत करते हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा उस शख्सियत को, श्री पी चिदम्बरम, पूर्व वित्त मंत्री जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन भी हैं, कि वो आएंगे और इस जन आवाज घोषणा पत्र के बारे में संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे। आदरणीय चिदम्बरम साहब। Respected Congress President Shri Rahul ji, respected former Congress President Srimati Sonia Gandhi ji, former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji, Shri Antony ji, Shri Venugopal ji, Shri Randeep Surjewala ji, my colleague Professor Rajiv Gowda, my colleagues in the party, friends from the media. The manifesto will be released in a few minutes and you will have a copy in your hands. The manifesto was made through a process which has been described by my colleague Shri Rajiv Gowda. The contents of the manifesto, in my view, are the millions of voices that we heard during these consultations. If there is a paragraph in the manifesto, that paragraph was actually spoken or written by a citizen or a group of citizens in this country. They spoke much more. They wrote to us much more, but we could not accommodate all those voices, all those writings, given the limitations of the size of the manifesto. When this manifesto is released and when the contents are known, you will find that there is enough in the manifesto which addresses the concerns of our farmers, youth, women, Dalits, minorities, industry, small and medium enterprises, those who are concerned with the state of our education, those who are concerned with the state of our health care, workers in the unorganized sector, concerns about internal security, concerns about national security, foreign policy,
the northeastern states, Jammu and Kashmir. There is so much more could have been said, but I'm sorry, given the limitations of the manifesto, we could only say so much. But I'm sure when our party workers and our party leaders take the message forward across the length and breadth of this country, they will find resonance to what we have said. The idea is to set the narrative for 2019. I think the Congress President has already set the narrative. The BJP, which is our opposition, they may be the ruling party today, they may call us the opposition, but the BJP is our opposition. That party is trying to seize the narrative. That party is trying to take the narrative back to the old, what they tried 5 years ago, the narrative of polarization, divisiveness, and hyper-nationalism. We have to bring the narrative to the real issues faced by the people. And the real issues are, as every survey, every research will tell us, the real issues are, number one is unemployment. 4 crore 70 lakh jobs were lost, not the 2 crore jobs every year that the Prime Minister promised. 4 crore 70 jobs were lost. The second issue is farmers' distress. Farmers' loan burden has increased year after year after year. And according to a NABARD report, the average Indian farmer has a loan burden of 1,04,000 rupees. 1,04,000 rupees. The third is women. And when we ask women in Mumbai, what is your prime concern? I thought they will say price rise. But what they said was our security. Women are afraid of their security, of their children's security, of the security of their homes. These are the top 3 issues: unemployment, farmers' distress, and women's security. There are many other issues. These thread that binds all the sections of the manifesto is simply in 2 words: wealth and welfare. The manifesto, when implemented by a Congress government, I assure you, we will create wealth and we will guarantee welfare. The theme of the manifesto is, how do you merge or how do you marry wealth and welfare? The goal of the manifesto is to announce a plan to the people of India where we will create wealth and we will guarantee welfare. And that, I'm sure, a Congress government under Shri Rahul Gandhi will do. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय चिदम्बरम जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिन पर हम सबको गर्व है, जिन्होंने राहुल जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ और इस देश का 10 वर्ष तक नेतृत्व करते हुए देश में गरीबी पर प्रहार किया और देश की व्यवस्था को बदला, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। Respected Congress President Shri Rahul Gandhi ji, former President AICC Srimati Sonia Gandhi ji, Chidambaram ji, Anthony ji, Venugopal ji, members of the Working Committee and all the other distinguished persons present here. Today is a unique date in the history of the Congress Party. We are going to release a forward-looking document which sums up the aspiration of the people of India for a decent life and life of dignity and self-respect.
As Shri Chidambaram has just now mentioned, this document has been prepared after consultations with large number of people from various walks of life. I am sure that it will be debated all over the country so that the aspirations of the people of India, the vision of the Congress Party and its Congress President can be a subject matter of widespread debate and understanding in various parts of our country. The purpose of the manifesto is to spell out the vision of the Congress Party to move forward at a faster speed than ever before, to move towards an inclusive, forward-looking economy and polity. We all would like India to be a prosperous country, a country where prosperity and productivity go together. And for that matter, the manifesto points its perspective with regard to what will happen to the country's economy, and it will be a strong, purposeful, modern market economy with savings rate target being fixed at 40% of our GDP, investment rate being fixed at 35% of GDP, so that there should be all-round understanding that meaningful problems of poverty, ignorance and disease that still afflict millions of our people can be solved only in the framework of a rapidly expanding economy. And this manifesto spells out that vision of a rapidly expanding economy. It also spells out what we would plan to do, how to get rid of chronic poverty, ignorance and disease which still afflict millions and millions of our people. We have made in the 10 years of the UPA a very impressive progress. 140 million people were brought out of the poverty line. We must better that record, and we must make sure that in the year 2030 we would have got rid of poverty from this land of ours. Therefore, the program that is mentioned, outlined in this manifesto, is worthy of all-round dialogue, discussion. The young people, the backward classes, the deprived classes, Dalits and minorities, all sections of society have been taken care of. But it is the duty of the Congress workers to carry the message of the manifesto to the people at large, and that's the purpose of releasing this manifesto today, so that we go ahead telling people what has been missing in the last 5 years of the BJP rule, how unemployment has increased, how farmers' distress has increased, how foreign policy is in a mess, and how we can, working together, move forward in a new direction which spells out the vision of the Congress Party. I therefore commend this document to all our sections of the community, all sections of our country, so that their aspiration, their vision can get a mechanism to bring together all sections of our society on a new platform of inclusive growth, which will get rid of poverty in a definite period of time. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके आशीर्वचन और इस जन घोषणा पत्र पर आपके विचारों से।
और अब जिस बात का इंतजार था, मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी नेतागणों से कि वो 2019 का ऐतिहासिक जन घोषणा पत्र उसका अनावरण करें। कांग्रेस अध्यक्ष और सभी नेतागणों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमें विश्वास है कि एक नए इतिहास की संरचना ये जन घोषणा पत्र 2019 करेगा और अब जिसकी हम सबको इंतजार था, मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से कि वो आएं और अपना वक्तव्य यहां दें। सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, एंटनी जी, पी चिदम्बरम जी, गौड़ा जी, वेणुगोपाल जी, all my Congress colleagues, general secretaries, brothers and sisters, friends from the media, I'd like to welcome all of you here today. We are releasing this manifesto, and it is a massive step for the Congress party. When we started this process about a year back, I spoke to Mr. Chidambaram, Mr. Gowda, and I gave them two instructions. I said this is not to be a manifesto made in closed rooms. I understand that the Congress party has a lot of expertise, but this manifesto should reflect the wishes of the people of India. That was the first point. And the second point I said was whatever is going to be in this manifesto has to be truthful. I do not want a single thing in this manifesto that is a lie, because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister. So I'm happy to say that after over a year of work, they have delivered on both those promises. They have delivered the voice of the people, and I know that because the moment we speak about things that are in the manifesto, there is an immediate resonance from the people. तो जब हम इसके बारे में बोलते हैं, जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं, जनता से एक रिस्पांस मिलता है। तो ये काफी अच्छी तरीके से हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काम किया है। तो मैं चिदम्बरम जी का, गौड़ा जी का और हमारी बाकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक्सपर्टीज दी, मैनिफेस्टो को एसेस किया, वेट किया। एंटनी जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और सोनिया जी ने भी अपने विचार मैनिफेस्टो पे हमें दिए, तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हार्ट का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे,
और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे दो काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम। दूसरा, चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े दो मुद्दे हैं, रोजगार और किसान। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं और सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आज अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए, एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए। आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के बारे में बोला, बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम है, मजाक उड़ाया। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी। तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। किसान की बात आप लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। 10 दिन के अंदर कहा था, हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया। तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह समझ सकते हो। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो यह हमारा पहला स्टेप। और दूसरा ऐतिहासिक स्टेप, हिस्टोरिकल स्टेप। देखिए, करोड़पति बैंक लोन लेते हैं। आपने देखा, अनिल अंबानी जैसे लोग, मेहुल चोकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग चोरी करके बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं। मगर जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग,
वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। तो यह भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमारा 6% बजट का टारगेट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको रिड्यूस किया है, यूपीए के समय से रिड्यूस किया है। हेल्थ केयर में सरकार एक स्कीम लाई है। बेसिकली स्कीम का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर 10-15 उद्योगपतियों को इंश्योरेंस के माध्यम से उनके जेब में पैसा डालना। तो हम प्राइवेट इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम सरकारी अस्पतालों को, सरकारी पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो। तो ये हमारे 5 फोकस एरियाज होंगे। नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का आपको रिकॉर्ड मालूम है। पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने देश को बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है और उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। आतंकवाद के जो कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करेगी, देश को एक साथ लाने का काम करेगी और जो हमारा नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी है उस पे हमारा जबरदस्त फोकस होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष का बहुत बहुत शुक्रिया। अवश्य ही हम निभाएंगे के वादे के साथ इस देश में एक निर्णायक शुरुआत कांग्रेस का 2019 का घोषणा पत्र करेगा। हालांकि एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पत्रकार साथियों के जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जवाब हम बाद में भी देंगे, पर संक्षिप्त में कुछ सवाल इस घोषणा पत्र को लेकर और देश के लिए आगे के रास्ते को लेकर हम लेंगे। कृपया अपना हाथ खड़ा करें तो बारी बारी से फिर हम सवाल पूछ सकेंगे। मिथिलेश जी फ्रॉम इंडिया टीवी। जी राहुल जी नमस्कार, मिथिलेश हूं मैं इंडिया टीवी से। आपसे सवाल है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं लगातार, विधानसभा चुनाव उसमें भी आप गए। आपको क्या लगता है, अभी राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, आप जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं उससे क्या लगता है कि क्या राष्ट्रवाद की बात सुनेंगे लोग या आपकी बात सुनकर अगली सरकार किसकी होगी? मेन मुद्दा देश में आज रोजगार का है और किसानों की समस्या का है। ये आप सबके सब सर्वे, सबके सब पोलिंग यही दिखा रही है। तीसरी बात, जो इकोनॉमी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, जैम्ड है, और इस बात को सब लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल अटकी हुई है, फंसी हुई है, तो उसको एक बार फिर चालू करना, उसमें जीएसटी का भी मामला है, उसमें न्याय योजना का मामला है। तो ये 3-4 मुद्दे हैं। और आखिरी, भ्रष्टाचार
राफेल और नरेंद्र मोदी जी के जो कंटिन्यूअस नॉनस्टॉप झूठे वायदे। विक्रांत फ्रॉम आज तक। राहुल जी, मैं आज तक से कुमार विक्रांत सिंह, आपसे सवाल यह है कि क्या हम लोग कांग्रेस पार्टी के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से बात कर रहे हैं, और सवाल यह है कि क्या मनरेगा 15 साल हो गए उस योजना को, वो कहां तक पहुंची है आपके हिसाब से, और नई न्याय योजना और मनरेगा दोनों कितने बड़े गेम चेंजर साबित होंगे? क्या हम नए प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर? ये देश के ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी है। मैं तो अपना काम करता हूं। ये सवाल तो आपको देश की जनता से पूछना पड़ेगा। जहां तक मनरेगा की बात है, मनरेगा ने 2009 में हिंदुस्तान की जो ड्रामेटिक ग्रोथ थी उसमें मदद की थी। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछें तो आपको बताएंगे कि जो पैसा डायरेक्टली रूरल एरियाज में गया था उससे इकोनॉमी फायर हुई थी, स्टार्ट हुई थी। वही लॉजिक न्याय योजना का है। देखिए, हिंदुस्तान में अभी इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स किया, छोटे दुकानदारों पे, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस पे वार किया, तो इकोनॉमी बिल्कुल फंसी है और उसको जंप स्टार्ट करने की जरूरत है, शॉक थेरेपी की जरूरत है। और इसीलिए हम शॉक थेरेपी और डायरेक्ट पैसा हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के जेब में डाल रहे हैं। वो पैसा, जैसे ही वो पैसा उनके जेब में जाएगा, वो चीजें खरीदना शुरू करेंगे। जैसे ही वो चीजें खरीदना शुरू करेंगे, इकोनॉमी फायर होगी, स्टार्ट होगी, और जो हमारे यूपीए के समय ग्रोथ के लेवल्स थे वो ही फिर से हो जाएंगे। क्या माइक पीछे देंगे? अरुण सिंह फ्रॉम IVN 7। राहुल जी, मैं अरुण सिंह हूं, न्यूज 18 इंडिया से। 2019 के चुनाव के लिए नैरेटिव जो सेट होना है, क्या वो आप जो ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं किसान, नौजवान, गरीब गुरबों की बात है, या फिर वो नैरेटिव जिसकी संभावना दिखती है? मैं आपको एक बयान बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अभी रैली में कहा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी का नाम लिया उन्होंने, हिंदुओं को आतंक से जोड़ दिया, अपमानित किया, और इसलिए वो एक मेजॉरिटी सीट छोड़ के माइनॉरिटी सीट से लड़ने जा रहे हैं वायनाड। देखिए, नैरेटिव सेट हो गया है। नैरेटिव न्याय है। नैरेटिव है कि अगर नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकता है जेब में, पॉकेट में डायरेक्ट, तो कांग्रेस पार्टी 20% गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। नैरेटिव सेट है। 72,000 गरीबों पर वार, 72,000, यह नैरेटिव है। अब इसका शॉक इफेक्ट लगा, जैसे धमाका बोलता है ना, फटता है, तो नरेंद्र मोदी जी को शॉक इफेक्ट लगा, और नरेंद्र मोदी एक के बाद एक किसी ना किसी चीज के पीछे छुप रहे हैं। मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है। देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह सच्चाई है और यह नैरेटिव है देश में। Let's go on the right side. Adish Rawal from ABP. और भैया देखिए, एक बात है, चौकीदार छुप सकता है मगर भाग नहीं सकता है। भाग नहीं सकता है क्योंकि हिंदुस्तान की सच्चाई सामने है, देश के सामने है। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स दिया, किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी मिडिल साइज स्मॉल बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, आपको बताएगा हमसे पैसा छीना अनिल अंबानी को दिया है। सिंपल सी बात। तो ये नैरेटिव है। आदिश रावल ऑन द राइट साइड। राहुल जी, जीएसटी को लेकर काफी नुकसान छोटे बिजनेसमैन को हुआ है, उसके लिए आपके पिटारे में क्या है? आप कैसे जीएसटी को में रिफॉर्म लाएंगे? हमने कहा है कि गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदलेंगे। 5 अलग अलग टैक्स हैं, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। हम एक सिंपल टैक्स देंगे
कम से कम टैक्स होगा, सरल सिंपल टैक्स होगा। यह काम कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा है, यह भी हम डिलीवर करके दे देंगे। सुप्रिया भारद्वाज फ्रॉम TV9। ओके सर। राहुल जी, सुप्रिया भारद्वाज TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल है न्याय योजना को लेकर। न्याय योजना आप लेके आए हैं, बहुत गेम चेंजर है, लेकिन बीजेपी जो है और साथ में कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये डुएबल नहीं है, कैसे करके दिखाएंगे। थोड़ा क्लैरिटी अगर इस पे आप देते हैं। बीजेपी ने कहा था कि किसान का कर्जा माफ करना डुएबल नहीं है। बीजेपी ने कहा था मनरेगा डुएबल नहीं है। मैं मानता हूं कि ये बीजेपी से डुएबल नहीं है, मगर कांग्रेस से ये डुएबल है। कांग्रेस करेगी। और देखिए हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा झूठ है, 2 दिन में हमने कर दिया। आप हम पर भरोसा कीजिए, मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। मैं 15 लाख नहीं बोलूंगा, मगर 72,000 साल के मैं बोलूंगा, 3,60,000 5 साल के मैं बोलूंगा। ये सच्चाई है, हम करके दे देंगे। संजीव फ्रॉम PTI। राहुल जी, others also. Sir, I'll announce after this. Rahul ji, BJP is trying to steal the narrative away from the real issues, and you're trying to bring them back. So, in your manifesto, how would you overcome the challenge of reaching out to far-flung areas and the common man at the grassroots level? Well, our flagship idea, Nyay, reaches out to every single poor person in this country. 25 crore people are going to be directly impacted by our flagship idea. The ideas that I have mentioned, education, healthcare, and our job strategy, is going to reach out to millions and millions of people in this country. So it is a very inclusive manifesto, and frankly, it is a manifesto that has come to us from the people. We have asked the people, they have told us what they want, we've put it. मैनिफेस्टो में आपकी मन की बात है, हमारी मन की बात नहीं है, आपकी मन की बात है। आप पूर्व प्रधानमंत्री जी आदरणीय सोनिया जी दोनों मंच पर हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष ने और चिदम्बरम जी भी, जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया है। कोई पत्रकार साथी अगर उनसे भी सवाल पूछना चाहे तो स्वागत है। संजय मिश्रा फ्रॉम जागरण। राहुल जी नमस्कार, मैं संजय मिश्रा दैनिक जागरण से हूं। मेरा सवाल आपसे है, आपने घोषणा पत्र में बहुत लंबे वायदे किए हैं और बहुत गंभीर वायदे किए हैं, पर चुनावी बहस गंभीर दिशा में नहीं है। चुनावी बहस जो है वो विभाजनकारी और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जा रही है। ऐसे में जनता के जो मसले हैं उसको आप चुनावी बहस का हिस्सा कैसे बना पाएंगे, जबकि आप नैरेटिव जो है वो विपक्ष कहीं ना कहीं नैरेटिव देने में कमजोर दिख रहा है। नहीं, मैंने अभी बताया कि नैरेटिव देश में रोजगार का है, किसानों का है और न्याय योजना का है। बीजेपी नैरेटिव को शिफ्ट करना चाहती है, मगर नैरेटिव शिफ्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि देश की सच्चाई बेरोजगारी है, देश की सच्चाई किसानों की बुरी हालत है। थैंक यू। Pallavi from CNIBN. I want to ask a question to Mrs. Gandhi and also... I think... okay, so then I want to ask a question to Mr. Rahul Gandhi. Mr. Gandhi, has the Congress made up its mind that you want to go solo as much as you can? Because your decision, for example, to contest from Wayanad has upset the left, who were your allies earlier. And I'm talking about, again, Bengal, I'm talking about other states as well. And Uttar Pradesh. There was a demand for me. Look, there is a feeling in South India, a very strong feeling in South India, that they are not being carried by the current government. South India feels hostility from Mr. Narendra Modi. They feel that they are not being included in the decisions of this country. So I wanted to send a message to South India that we are with you and I am standing with you. That is why I am standing from Kerala. Now,
What was the second part of your question? I don't know where you're getting this information from. Last I saw, we have an alliance in Bihar, we have an alliance in Jharkhand, we have an alliance in Tamil Nadu, we have an alliance in Maharashtra. So I don't know where you're getting, which newspapers you're reading. But as far as I can see, we have alliances across the country. Baba from NDTV, can you please pass on the mic? Baba पीछे खड़े हैं, तो जरा उन्हें दे दीजिए. आशीष. राहुल जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आज ही अखबार ने लिखा है कि कल जो प्रधानमंत्री का भाषण था, तो एक वर्ड जो है बार बार उनके भाषण में आया, हिंदू हिंदू हिंदू. इसको कैसे काउंटर करेंगे आप, हिंदू और राष्ट्रवाद को? देखिए, सब लोग हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं, मगर देश में रोजगार की जरूरत है, देश में किसानों की मदद करने की जरूरत है, देश में न्याय की जरूरत है, महिलाओं की देखभाल करने की जरूरत है, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की जरूरत है. नरेंद्र मोदी जी छुप रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी सच्चा जो डिबेट है वो नहीं करना चाहते. मैंने आपसे बोला है और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भ्रष्टाचार पे मेरे से आके डिबेट करें, नेशनल सिक्योरिटी पे मेरे से आके डिबेट करें. आए, चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, नेशनल सिक्योरिटी पे मुझसे डिबेट करके दें, फॉरेन पॉलिसी पे मुझसे डिबेट करके दिखाएं, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे डिबेट करें. मैं आपसे पूछता हूं, प्रधानमंत्री आपके साथ ऐसे क्यों नहीं बात करते हैं? आपके साथ क्यों नहीं बात करते हैं? आपसे डरते क्यों हैं? आप ये प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हो? आप ये प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से डरते क्यों हो? मैडम गुस्सा कर रही हो, ऊपर देख करके वो चिल्ला रही. आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है. ये आप उनसे नहीं पूछते हो, आप डरते हो पूछने से. मुझसे आप सवाल पूछते हो मगर उनसे आप डरते हो. आप भी पूछिए उनसे, प्रधानमंत्री जी आप हिंदुस्तान की जनता से क्यों डरते हो, हिंदुस्तान की प्रेस से क्यों डरते हो? नरेंद्र मोदी जी डर सकते हैं मगर चुनाव में हम उनको हराएंगे, आप देखना. थैंक यू. Vion, please. Sharma ji, can you pass on the same mic, please? Sir, Rahul ji, I'm Kartikeya Sharma from Vion. My question to you is that your manifesto is very job, economy, pollution, civic amenity centric. Do you think that in post Balakot political narrative, it is enough to propel Congress back to power? I'm absolutely sure that the issues in this election are unemployment and the state of farmers. I'm absolutely sure about that. If you go out, that's what the country is saying. So I'm absolutely certain that the issue in this election is Rozgar and Kisan, Bhrashtachar and Nyay Yojana. Ashish Singh. राहुल जी, गुड आफ्टरनून. आशीष हूँ एबीपी न्यूज से. दो सवाल हैं सर. एक पल्लवी जी जो पूछ रही थी उससे रिलेटेड एक सवाल पूछ लीजिए. आई थिंक वी नीड टू नाउ प्रोसीड विद अदर प्रोग्राम. सर एक छोटा सा आप कंसिडर. सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से आप अलायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने कई स्टेट का जिक्र किया कि अलायंसेस हो रहे हैं. इसको लेकर के जो कंफ्यूजन है उसको अगर आज आप क्लियर कर दें. There is no confusion on this. The situation is actually very clear on this issue. We have constructed alliances. We have been open to construct alliances, and we have done it across the country. We are very flexible on that issue. Sir, just the other question. Thank you so much. I think there will be a press conference at 4:15 again by Shri P. Chidambaram, and rest of the questions can be taken there. मैं एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, श्री पी चिदम्बरम जी का, श्री ए.के. एंटनी जी का, श्री के.सी. वेणुगोपाल जी का और मेरे साथी गौड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. आज इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र के अनावरण के लिए, एक नई देश की शुरुआत के लिए और उसके साथ साथ आज बहुत सारे सवालों के जवाब लेने के लिए. मुझे उम्मीद है कि जिनकी विदाई तय है वो इनसे कुछ सीख लेंगे. आपका बहुत बहुत स्वागत. धन्यवाद.
मैं मीडिया के साथियों से अनुरोध करूंगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष श्री अहमद पटेल जी ने आपके लिए एक विशेष प्रीति भोज का आयोजन किया है वहीं पर पीछे, तो आप सब उस प्रीति भोज में अवश्य शामिल हों।